Good morning, all my beautiful friends. Lovely morning. Once again, I am here to say thanks to Lord, bunch of thanks, our Creator, Almighty God, for this air, water, sunlight, and much, much more. Whole the sky, everything, star, sun, moon, all planets, everything, whole, endlessly. When we go to think, just like we can't imagine, we can't bear it whole, like uh, everything is leaving you towards uh, endlessly, like everything is leaving you. I just can't describe my true feeling. So here I am going to read some collected informations. Please, all holy, forgive me, my Lord, all my mistakes and all my sins. पवित्र आत्मा वास्तव में क्या है? पवित्र आत्मा त्रिमूर्ति के तीन व्यक्तियों में से एक है। पिता और पुत्र या वचन के साथ सृष्टिकर्ता ईश्वर की अदृश्य प्रत्यक्ष उपस्थिति के रूप में पवित्र आत्मा समस्त सृष्टि को जीवंत और पोषित करती है और संसार में ईश्वर की सक्रिय उपस्थिति का प्रतीक है। Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive Holy Spirit. You must have accepted Jesus as your Lord and Savior, and the only thing necessary to receive the Holy Spirit is that. And it is being fully devoted to and invested in God's kingdom. We who have faith in Jesus are called to be a holy people. Every follower of Jesus is a holy person. It means that you belong to God. He has called you, chosen you, and set you a part of His purposes. In other words, when you heard the gospel and believed it, you were at that moment sealed with the Holy Spirit. So, if you have received Christ, if you believe in Him and His resurrection from the dead, you have the Holy Spirit. Now we can be more or less filled with the Holy Spirit. The Spirit is presented as seven spirits. It is with seven eyes with that God scans to and fro through the whole earth. And through scriptures, Holy Spirit speaks to us, and God's written story, Bible, words from truth from Him. From some people, feeling the Holy Spirit can be a physical sensation as our bodies are designed to respond to God's presence. When the Holy Spirit enters a Christian's life, they may feel a sense of warmth and embrace, tingling, and electricity. We connect to the Holy Spirit's power by turning into what He is doing in our lives. Paul says, for instance, those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. So we maintain an awareness of the things that matter to God and what He might be leading us to do. पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है जो उद्धार के समय प्रत्येक सच्चे विश्वासी के भीतर निवास करती है। यह विश्वासी अपने पुराने पापी स्वभाव के बजाय परमेश्वर की आत्मा द्वारा नियंत्रित होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है जो आप में निवास करती है। वो हमें मोहर लगाते हैं, हमें प्रकट करते हैं और हमें भर देते हैं। यीशु पिता को प्रकट करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पवित्र आत्मा तब हमारे जीवन में उद्धार का कार्य संपन्न करते हैं।
वे हमें पाप का बोध कराते हैं, हमारे हृदय को नया जीवन प्रदान करते हैं, हमारे भीतर निवास करते हैं और हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की शक्ति देते हैं। आज इतना ही। आमीन। प्रभु करे ऐसे ही हो, नया नया गुण आप में भर जाए, हम अपने आप को सुधार पाए, पढ़े माने जाने, नए तरीके से जीने के लिए एक उन्मुक्त आसमां के नीचे आपको प्रशस्त भूमि प्रदान किया गया कि आप जियो, भर जाओ, इधर उधर हम लोग ना भटके। अगर आप में पवित्र आत्मा है तो उनको प्रिजर्व कीजिए, संरक्षण कीजिए, उनके अनुरूप रहिए। हम लोग भटक जाते हैं, मैं इधर उधर दिन भर में मेरा जैसे कि कनेक्शन बिछड़ जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ और लगता है कि मैं कहाँ आके गिर गई। इस तरह से हमेशा मेरे साथ हो रहा, हमेशा हो रहा। हेल्प मी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल क्रिश्चियन, all missions, please help me to connect God, continue Him with all blessings। जो माना है वो माना है, और जो सही है उसको बार बार पढ़ने का जरूरी है। वर्ल्डली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ टोटली डिफरेंट है। वर्ल्डली लाइफ को आप स्पिरिचुअल लाइफ में ढल सकते हो, उस अनुरूप जीवन को सुखद सुसमाचार में भर सकते हो। सुगंध आप में से आएगा, वो अनुभूति आपको आगे सुखानुभूति में भर देगा। मेरा दावा यही है। ईश्वर हमेशा अनुभूति में जीते हैं। प्रभु बचपन में से अभी तक जाने अनजाने में आप हम लोग कितना बार ईश्वर को खो देते हैं, फिर पाते हैं, फिर खो देते हैं, फिर पाते हैं। जीवंत परमेश्वर हमेशा कब से है, आगे भी रहेंगे। खुदा करे हम लोग अनुभव में जिए और इस ज्ञान को उस चिंताधारा के साथ मोल दे कि क्या सोचूं और क्या ना सोचूं। सोच में सारा तहस नहस हो जाता है, भला चीज को हम लोग खो देते हैं, फिर सोच में हम लोग जीते हैं। ईश्वर के मुताबिक सोचे, ईश्वर के मुताबिक खोजे, ईश्वर के मुताबिक हमेशा अपने आप को वहाँ प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील रहे। खुदा मेरा आज के दिन के यही हम भीख मांगते हैं तेरे से।